All right, so let's do some examples in which we are figuring out whether the body, the object is in complete equilibrium or not. So first case is that there are two forces applied in upward direction and one force is applied in downward direction. So we'll apply both condition of equilibrium. First condition states that sigma fx is equals to 0. So we are talking about this figure. Let's call it figure A. This is figure B and this is figure C. So we are discussing figure A right now. So we know that applying first condition simply says that sum of all forces, yani F net is equals to 0. So sigma F net is equals to 0. If we apply first condition and we know that sigma Fx is equals to 0 because there is no horizontal forces on this system, there is no horizontal force. There is no horizontal force, so यहाँ पे statement should be written there is no horizontal force, so this condition is satisfied. Next is sigma Fy is equals to 0. Sigma Fy is equals to 0 implies that sum of upward forces must be equal to sum of downward forces. So if we see that sum of upward forces are taken, let's say we take them upward forces positive and downward forces negative. Sum of upward forces plus sum of downward forces must be equals to 0. Downward must be equals to 0. So upward forces, we'll consider upward forces. So we can see that upward forces are this F and this F. So there are two upward forces, that is F plus F. They are taken positive. So plus F plus F, and you will add downward forces. So there is only one downward force, that is this 2F. So we'll plus and sum of downward forces, so minus 2F must be equals to 0. So f plus f gives us 2f and minus 2f plus minus minus 2f, simple algebra. So 2f minus 2f is equals to 0. That means sigma f is equals to 0 because second condition is also satisfied. So sigma fy is equals to 0. So first condition is, sorry, second condition नहीं, first condition का second part is also satisfied. So sigma fy is equals to 0. This is satisfied. This was already satisfied. So sigma first condition is satisfied, so we can say that this body is in static equilibrium. अब ये आपके पास static equilibrium आप कैसे कह सकते हो यहाँ पे, because आपने यहाँ पे first और second condition दोनों लगाई. So first condition में आप देख सकते हो कि net force is equals to 0, so body is at rest and has no tendency to start moving as whole. मूविंग एज होल का मतलब है कि ना बॉडी इस तरह पूरी की पूरी ऊपर जाएगी ना पूरी की पूरी यूं नीचे आएगी. तो आपके पास इन लीनियर या translational motion is not possible here. Now we'll apply second condition on figure A. So applying second condition on figure A, we will get second condition. So second condition is sigma tau net is equals to 0. So we know that sigma tau net is equals to 0 simply means that sum of clockwise torques must be equals to sum of clockwise torques must be equals to sum of anti-clockwise torques. I am using this notation, but do not use this notation in your examination. Please write full terms. So sum of anti-clockwise torque. So यहाँ must be equals to 0. So हम यहाँ पे देख लेते हैं कि clockwise torques कौन से होंगे, anti-clockwise torques कौन से होंगे. So if we observe this force and this is the pivot point, दिस इज द पिवट पॉइंट. सो ये आपके पास अगर पिवट पॉइंट है, सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगर आप पेंसिल रूल अप्लाई करो, सो यहाँ पे आपके पास जो फिक्स पॉइंट बीच में और यहाँ पे एक फोर्स लगाओ, सो दिस विल प्रोड्यूस अ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. सो दिस फोर्स, दिस विल बी टॉ, लेट्स से इसको हम कह देते हैं टॉ ए और इसको आप कह देते हो टॉप बी. सो टॉप बी आपके पास कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर आप पिवट पॉइंट सेंटर में ले रहे हो और आपने फिक्स कर लिया अपनी पेंसिल दरमियान में और इस साइड पे आप फोर्स लगाओ, सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी टॉप बी. सो टॉप ए इज anti-clockwise and tau b is clockwise. Whereas for 2f, there will be no tau for this 2f because ये आपके पास pivot point पे ही apply हो रहा है.
सो टॉ आपको पता है टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। सो यहाँ पे आप साइन थीटा तो आप ले नहीं रहे बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो साइन 90 इज पॉजिटिव सॉरी +1। सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड में आप सिर्फ आर एफ कंसिडर करते हो। सो इन दोनों को तो आपने कंसिडर कर लिया, इसकी एफ थी इसकी भी एफ थी और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। बट इस केस में आप देखो आर इज इक्वल्स टू 0, फोर्स पिवट पॉइंट के ऊपर ही अप्लाई हो रही है। सो दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स टॉ इज इक्वल्स टू 0। सो देयर इज नो टॉ एक्टिंग ड्यू टू 2f। सो इसकी वजह से कोई टॉर्क इंड्यूस नहीं हो रहा। सो आपके पास अब यहाँ पे देखो, सो क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास यहाँ पे कौन सा है, टॉ बी। सो यहाँ पे आपने टॉ बी को ले लिया और इसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगाया बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव साइन इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन केस ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। सो यहाँ पे अब आप देखो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में आपके पास कौन सा है, टॉ ए इज इन एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन डायरेक्शन। सो टॉ ए प्लस टॉ ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आपके पास माइनस टॉ बी बिकॉज ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों का डिस्टेंस भी सेंटर से सेम है आर और आर। तो ये आपके पास दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो माइनस टॉ बी इज इक्वल्स टू टॉ ए। सो ये दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है ना, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक कह रही है कि क्लॉकवाइज पोजीशन में मूव करो, दूसरी कह रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का ही इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 अबाउट द एक्सिस। सो बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट हैज नो टेंडेंसी, इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है टू स्टार्ट रोटेटिंग। सो देयर इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल। फर्स्ट कंडीशन ने इंश्योर किया देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन और यहाँ पे इसने सेकंड कंडीशन ने नो ट्रांसलेशनल मोशन और सेकंड कंडीशन इंश्योर्स देयर इज नो रोटेशनल मोशन। सो आपके पास अगर फर्स्ट कंडीशन ने ये कह रहे हैं कि कोई ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं देयर इज नो रोटेशनल मोशन। सो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपको पास तब होता है जब आपके पास देयर इज नो rotational motion and there is no there is translation equilibrium and there is rotational equilibrium. So first condition ensures translation equilibrium, second condition ensures rotational equilibrium. So आपके पास ये body is said to be in static equilibrium. This was the first case and we have applied thoroughly the two conditions of equilibrium for them. Next up is alright, so we'll apply first condition on second figure, that is फिगर 2.34b। सो इस केस में अब आप देख सकते हो कि अगर हम इस केस में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, सो फर्स्ट कंडीशन सिंपली सेज दैट इफ नेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, so fx is equals to 0 because there is no horizontal force on the system, so this condition is satisfied. Next up we have sigma fy must be equals to 0. So sigma fy means कि vertical forces को आपने देखना है, so upward forces आप देख लो और downward forces देखो। अपवर्ड फोर्सेस का सम ले लो और डाउनवर्ड फोर्सेस का सम ले लो और उनको आपस में ऐड करो, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अपवर्ड फोर्सेस आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही अपवर्ड फोर्स है, तो उसको आपने प्लस एफ कंसिडर कर दिया। फिर आपने कहा सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस देखते हैं, तो आपके पास एक ही डाउनवर्ड फोर्स है, तो दिस इज माइनस एफ। तो आप यहाँ पे माइनस एफ कंसिडर करोगे। सिंस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सो अगर 5 न्यूटन है ये भी 5 न्यूटन, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो ये आपके पास मस्ट बी, आपके पास क्या होगा, दे मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो बोथ ऑफ देम इम्प्लाइज दैट सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू 0। सो सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू 0 मीन्स कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन या बॉडी इज एट रेस्ट और इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है टू स्टार्ट मूविंग एज अ होल। मतलब वो एज अ होल ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा सकता है या नीचे भी नहीं आ सकता इस स्पेसिफिक कंडीशन में। नेक्स्ट वी विल अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन इट, बिकॉज देखो अगर आप यहाँ पे अभी सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम करो, सो देखो आपने ये देखना है ना कि फुली इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो सिग्मा टॉ नेट इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पे देखो कि आपको सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं और उन दोनों का लाइक यहाँ पे किस तरह से, अब आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास पिवट पॉइंट है, ऑब्वियसली यही पिवट पॉइंट होगा बिकॉज ये सेंट्रल पॉइंट है। सो अगर आप यहाँ पे फिक्स करो और यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगाओ, सो दैट विल cause our torque in clockwise direction. Let's call this tau A, and
अगर आप यहाँ पे पिवट पॉइंट कंसिडर करो और अब आप यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाओ इस साइड पे, so that will also cause a torque, a rotational effect, and that will be in and clockwise direction too. So that was tau b. Let's call it tau b. So second condition is not satisfied because आपके पास sum of clockwise torque देखो tau a और आपके पास clockwise torque में ही tau b भी आ गया. दोनों पॉजिटिव, आप दोनों नेगेटिव ले लो चलो, क्योंकि हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं. प्लस कोई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो है ही नहीं, सो दैट इज इक्वल टू जीरो. सो आपके पास माइनस टॉ ए माइनस टॉ बी इज इक्वल टू जीरो. तो आपके पास ये दोनों की डायरेक्शन सेम ही है. सो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इसका मतलब है कि बॉडी विल रोटेट. देयर इज अ नेट क्लॉकवाइज टॉर्क. आपके पास एक नेट क्लॉकवाइज टॉर्क है अबाउट द एक्सिस. सो बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग in clockwise direction. So आपके पास first condition तो satisfied है कि there is no translation motion, but second condition is not satisfied. There is clockwise torque in it. There is net clockwise torque in it. So इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे second condition satisfy नहीं हुई. So that means कि ये आपके पास एक complete equilibrium में नहीं है, because although the body has no tendency to accelerate as a whole, यानी translational motion बेशक उसमें नहीं है, but it has a tendency to start rotating. Therefore this particular system is not in full equilibrium. How this system was in complete equilibrium. This system is not in full equilibrium. This is not complete equilibrium. This is not in complete equilibrium. Rather, it is satisfying only first condition and it is not satisfying second condition. Now we will see what will happen to figure C if we apply these two conditions on it. So let's just start applying the conditions. Alright, so first of all, we'll apply first condition of equilibrium on figure C. So first condition implies that F net is equals to 0 and Fx is equals to 0 and Fy is equals to 0. So Fx is equals to 0, sigma summation of Fx is equals to 0 because there is no horizontal force acting on the object. Second condition is that, second part of the first condition is that sigma Fy is equals to 0, which implies basically the sum of upward forces must be equals to sum of downward forces, or their sum must be equals to 0. So upward forces here, there are two upward forces and that is F. So we'll take upward forces positive. So plus F and plus into plus and plus sign with 2F because it is also an upward force. So 2F. So here there is no downward force. So this will be 0. So F plus 2F must be equals to 3F. So 3F plus 0 is equals to 0. That means कि this condition is not satisfied. इन दोनों को sum करके आपके पास 0 नहीं आ रहा. So ये condition आपके पास गलत prove हो गई. So that means कि there is some net force. Sigma F net is not equals to 0. ये आपके पास this condition implies that sigma, आप देखो 3F को plus करो 0 में, so 3F आना चाहिए, आपके पास 0 नहीं आना चाहिए. So that means कि ये condition आपके पास satisfy नहीं हुई. So आप यहाँ पे कहोगे sigma Fy is not equals to 0. When sigma Fy is not equals to 0, so that means कि आपके पास sigma F net is not equals to 0 because Fy इसी का part था. So आपके पास sigma F net is not equals to 0. जब force आपके पास 0 नहीं है, so that means there must be some acceleration. So body will accelerate. So first condition आप देखो कि not satisfied, there is a net upward force. Upward force होगी, आप ये देख सकते हो दोनों upward हैं. So इन दोनों का resultant भी positive direction में, +3 direction में. So positive direction में upward force. So the body at rest will start moving upward. Obviously ये वाली condition आपके पास satisfied नहीं हुई यहाँ पे. So आपके पास ये translational equilibrium में तो नहीं है. So next condition हम apply करेंगे, that is second condition of equilibrium. So that is basically sigma tau is equals to 0. So second condition basically implies that sigma summation of tau net is equals to 0, यानी sum of clockwise torques must be equals to sum of anti-clockwise torques. So अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने torques calculate करने हैं. So clockwise अगर आपके पास ये pivot point है, this is pivot point. So pencil rule apply करो और अब आप यहाँ पे अब conditions आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास एक force यहाँ upward direction में लग रही है, so this will cause a tau, इसको हम tau 1 कहेंगे. So tau 1 will be in
clockwise direction. So tau1 will be in clockwise direction, and clockwise direction है, so आप इसके साथ negative sign लाजमी insert करोगे. So this will be minus tau1. नेक्स्ट आप ये देखो कि आपके पास 2f की वजह से कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. सो 2f की वजह से अगर आप गौर करो, सो यहाँ पे अगर आप पिवट पॉइंट सेंटर में ले रहे हो, सो सेंटर पॉइंट पिवट पॉइंट लेके आप 2f की फोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सो दैट विल कॉज अ टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स में आप लिखोगे टॉ2. सो दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन पॉजिटिव. सो यहाँ पे अब आपके पास इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सो अब यहाँ पे आप देखो τ1 आपके पास क्या होगा कि हमें पता है τ इज बेसिकली इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. यहाँ पे मोमेंट आर्म r है और फोर्स आपके पास यहाँ पे f है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो f मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे माइनस साइन तो ऑब्वियसली आएगा बिकॉज τ के साथ माइनस साइन है. सो माइनस f मल्टीप्लाइड बाय r मोमेंट आर्म माइनस एफ आर प्लस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज 2f और हाँ सॉरी 2f, और इसका मोमेंट आर्म कितना है, इसका मोमेंट आर्म है हाफ आर. सो हाफ आर 1/2r, that is equals to 0. So this 2 will cancel out this 2 and you are only left with f multiplied by 1, that is f, and 1 multiplied by r is also r. So f multiplied by r is the fr प्लस यहाँ पे आपके पास माइनस एफ आर प्लस एफ आर कैंसिल आउट ईच अदर. सो ये आपके पास 0 हो गया. सो दैट मीन्स सिग्मा टॉ नेट इज इक्वल्स टू 0. सो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट फर्स्ट कंडीशन इज नॉट. सो नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज इक्वल्स टू 0. सो बॉडी एट रेस्ट हैज नो टेंडेंसी टू स्टार्ट रोटेटिंग. सो दिस मीन्स कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट केस जो ए वाला पार्ट था दैट वाज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी. बट सेकंड पार्ट आपके पास वाज ओनली सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, यानी आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करी थी. देयर वाज नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बट थर्ड केस में आप देख सकते हो आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. सो ये इस तरह के केसेस आपके पास आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आपसे मे भी पर्टिकुलर केसेस इस तरह से पूछे जाएं कि आप खुद ड्रॉ करनी, आपको वहाँ फिगर्स करनी पड़े. फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि ड्रॉ अ सिनेरियो इन विच रोटेशनल कंडीशन, रोटेशनल equilibrium is satisfied is there but there is no translational equilibrium. So आपको इस तरह से scenarios दिए भी जा सकते हैं. So ये आपको अपने mind में खुद से ये चीजें रखनी होंगी कि आपने कौन सी conditions में किस तरह से, और आप खुद से अपने माइंड में भी ये करने की कोशिश करो कि डिफरेंट केसेस खुद से अपने माइंड में लाओ, इमेजिन करो, उनको ड्रॉ करके पेपर पे फिर अप्लाई करके देखो उन पे कि कौन से केसेस को आप किस तरह और कौन से तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो. दैट वाज इट. आपने ये वीडियो देखनी है और आपने काइंडली कमेंट करना है यहाँ पे कि आपने ये वीडियो देख ली है. अपने इनिशियल्स, यानी अगर मेरा नाम माहीन आरिफ है सो MA, बेशक अपना पूरा नाम ना लिखो, सो MA सीन आप ये करके लिख दो सो दैट कंफर्म हो जाए मुझे कि आपने ये वीडियो देखी है. और इंशाल्लाह कल हम न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल करेंगे, और अगर आपको इस चीज़ का अच्छा सेंस डेवलप हो जाएगा सो आपके लिए वो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम मिलते हैं.